السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو. اور آج عید کا دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے سوری. اور جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں دن ہم نے آپ کو ٹرانسمیشنز دکھائیں اور آپ لوگوں نے ہماری ٹرانسمیشنز دیکھی. جو ٹرانسمیشن ہے ہماری عید کی دیٹ از اسپانسرڈ بائی ٹپال فیملی مکسچر اور پاکولا فلیورڈ ملک. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر کیپٹن محمد زمان شیخ. یہ بیسیکلی اسپیشلسٹ ہیں فار ڈائبٹیز اینڈ ہارمونس. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر امان اللہ خان پراچا صاحب، چیئرمین پاکستان مسلم الائنس ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ حذیفہ خان جو کہ لیگل ایکسپرٹ ہیں. تینوں کو آپ کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں اور آپ لوگ کو عید مبارک بھی. اور تمام تر ناظرین کو جو ہماری دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سب کو بھی عید مبارک ایک بار پھر. جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ عید تھوڑی ڈفرینٹ ہے، باقی جو ہماری عید ہوتی ہیں گزرتی رہی ہیں ان سے کافی مختلف ہے. اس کے دو پہلو بھی ہم نے ڈسکس کیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کووڈ-19 نے ہماری لائف کو اوور آل متاثر کیا ہے، نہ صرف اس عید کو بلکہ ہمارے جو اوور آل رمضان مبارک میں بھی جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں اس کو بھی متاثر کیا. پھر ریسنٹلی پلین کریش کا جو ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک ڈیزاسٹر رہا جس سے ہم کافی ایموشنلی ڈاؤن ہیں. لیکن پھر بھی ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے، اللہ نے ہمیں خوشی دی ہے جو کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ذرا مختلف ہے. بات کریں گے اس کے اوپر اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ کیا چینجنگ انہوں نے اس عید پہ بیسیکلی دیکھی اور اوور آل کچھ اور بھی پہلوؤں پر ان سے بات کریں گے. سر میں آپ سے آغاز کروں گی. جس طرح آپ اسپیشلسٹ ہیں، ڈائبٹیز اور ہارمون اسپیشلسٹ ہیں اور آپ ڈاکٹر بھی ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ نے جو ہے کچھ سائنٹیفک اسپیکٹس کے اوپر ہم سے اس پر بات کرنی ہے کہ جس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 سے جو ایشوز ہو رہے ہیں اس اوور آل گلوبلی جو ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے عید کے ساتھ کیسا اس بارے میں کیا انالیسس دیں گے کہ کیا اسپیکٹس یہاں پہ افیکٹ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، کورونا کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں ہیں. ہم نے 1 مہینہ ویٹ کیا کلینک اپنی بند، اس کے بعد پھر دیکھا کہ بھائی اس کا تو ابھی یہ پروسیس بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو سب ڈاکٹروں نے بڑی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اب کلینک اسٹارٹ کر دی ہے تقریباً 80% میں. اب یقین جانے جو بھی مریض آتا ہے پہلا اس کا سوال یہ ہوتا ہے، تکلیف اپنی مرض میں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کورونا ہے کیا نہیں ہے. یہ سنا ہے کہ یہ صرف کوئی پولیٹیکل اس کی ریزن ہے یا کوئی ہائی لیول کی ریزن ہے، اس کی وجہ سے جان بوجھ کے اس کا خوف بنایا گیا ہے. تو دیکھیں، میں کلیئر ان کو کہتا ہوں کہ ہم نے بڑی اذیتناک موت مرتے دیکھا ہے ان مریضوں کو جو کورونا پازیٹیو ہے. اذیتناک موت ایسے لگتا ہے. دیکھیں نا، سانس کوئی نہ لے سکے، آپ 4 منٹ سانس نہ لیں، ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی سانس نہ لے سکے تو اس سے زیادہ تکلیف اور کیا ہوگی. کورونا کے مریض سانس نہیں لے سکتے. ان کی سیچوریشن جو 90% سے اوپر ہونے چاہیے آکسیجن، وہ 30-20 پہ ڈراپ کر جاتی ہے. وینٹیلیٹر دینا پڑتا ہے جس کے اپنے نقصانات ہیں. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی جانب یہاں پہ آؤں گی اور اس کے اوپر بات کروں گی آپ سے. اور یہاں پہ امان اللہ خان پراچا صاحب آپ سے بھی جانوں گی، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی لوگ جو ہیں سیریس نہیں ہیں ابھی، اسپیسیفکلی پاکستان کی اگر ہم بات کریں، SOPs کو جو ہے انہوں نے دھیان میں نہیں رکھا یا کیا سینیریو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قوم کو، ناظرین کو اپنے مبارکباد دیتا ہوں عید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تہوار دیا. لیکن یہ عید ہمارے لیے بڑی افسوسناک طریقے سے سٹارٹ ہوئی کہ جہاز کا کریش ہو گیا، اس کے بعد کورونا کے وہ مریض جو دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے. یہ بھی شہید ہی ہیں، اور جو خاص طور پہ وہ ڈاکٹرز اور وہ پیرا میڈیکل اسٹاف جو اس کام کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، ان میں بھی کئی لوگ شہید ہوئے. اور یہ کیونکہ حکومت کی کوئی لاک ڈاؤن کرنے کے دوران بھی اس کی کوئی پالیسی سمجھ میں نہیں آئی، لاک ڈاؤن کر دیا گیا. صوبائی حکومت کی بات کر رہے ہیں، کسی ایک صوبے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، میں صوبائی حکومت کی بات کروں گا تو پھر میں تعریف کروں گا مراد علی شاہ کی. مراد علی شاہ صاحب وہ پہلا شخص ہے، پہلا وزیر اعلیٰ ہے جس نے ایسے وقت میں سندھ کے اندر بڑی احتیاطی تدابیر کی، اور دوسرے لوگوں نے بہت فائدہ ہوا. سندھ میں ریشو جو ہے کرونا مریضوں کی کم ہے،
جبکہ یہاں پہ لاک ڈاؤن کی لوگوں نے جس یہاں لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ چڑھے ہوئے ہیں, کیسے جو کچھ بازاروں میں لوگ تو ابھی بھی وائلیٹ کر رہے ہیں SOPs, یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, لوگ باہر آ رہے ہیں, بس ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز خراب ہوئی ہیں. دیکھیں ہماری اکانومی 2-2.5 سال سے بربادی, میں ایک بات عرض کروں, ہماری اکانومی پچھلے 2-2.5 سال سے بربادی کی نیچے چلی جا چکی ہے. بربادی سے بھی لفظ بربادی نہیں, بربادی سے نیچے لوگ بھوکے مر گئے, 1 کروڑ سے زائد لوگ بے روزگار ہو گئے. اور آج آپ جو کورونا نے باقی اس ملک میں پہلے ہی 1 کروڑ سے کم 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے وہ بھوکے سوتے تھے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جو صرف اپنی سیلف رسپیکٹ کی خاطر نہ تو وہ لائنوں میں لگ سکتے ہیں, نہ وہ لوگوں سے سوال کر سکتے ہیں, وہ لوگ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. لوگوں کی نوکریوں کو فائر کیا گیا, اپروکسیمیٹلی 3000 سے زائد لوگوں کو جو ہے اپنی جاب سے نکالا گیا ہے. اگر ہم ان کی آن لائن ٹیکسی سروسز کی بات کریں, جتنے بھی برانڈز ہیں سب کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا, جو یہ رائڈرز ہیں ان کو نکالنا پڑا, تو کتنا بڑا لاس اور کتنوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے آپ کے حساب سے؟ کہ یہ حکومت کی غلط پالیسی ہیں. سر کون سی حکومت کی؟ تو پھر آپ تو اپریشیٹ کر رہے تھے سندھ حکومت کو. سندھ گورنمنٹ تو اس کا کوئی تعلق نہیں, مین کام تو وفاقی گورنمنٹ کا ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں وفاقی حکومت کو چاہیے تھا جس طرح بجلی کے بل, گیس کے بل, اسکول کی فیسیں حکومت خود برداشت کرتی, کیونکہ عالمی اداروں سے بہت بڑی مدد. بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو جائے گا ہمارا عید کا شو, لیکن تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر دوں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ احساس پروگرام سے ان کو بہت زیادہ لوگ انٹرٹین ہوئے ہیں, اور باقی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. 12,000 میں کیا انٹرٹینمنٹ ہے؟ اب آپ خود کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی فیور میں, تو آپ خود دیکھیں آپ تو PTI ہے نا, PTI کے اندر آپ PTI ہو کر سوچتی ہیں. پاکستان کے عوام, اب میں اپنا پرسنل اوپینین شیئر کروں گی, آپ بولیں گے. ایک مجھے بات کرنے دینا, پہلے بات تو کر, لوگوں کو پتہ تو چلے. صحیح ہے سر, لیکن میں پرسنل اوپینین شیئر کروں گی, آپ پھر PTI بولیں گے. متوسط طبقہ جو ہے وہ تو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. صحیح ہے, غریب آدمی پہلے ہی مر چکا تھا. 1 کروڑ تو اور مار رہے ہیں نا سر, بھوکے سوتا ہو, 9 کروڑ آدمیوں کو ایک وقت کھانا نصیب ہوتا ہو, 2.5 کروڑ جس ملک میں بچے اسکولوں میں لائے جاتے ہو. ایسے میں حکومت جو ہے اس کو چاہیے تھا کہ جتنی بیرونی اس کے امداد ملی ہے, وہ گیس کے بل, بجلی کے بل. سر کر تو رہی ہے وفاق, صوبے نے کیا کیا یہ بتائیں, پالیسیز بنائی اور پھر چینج کی. آپ مراد علی شاہ سے پوچھے کہ اس نے کیا کیا. میں اوورآل بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں, پوری دنیا میں تمام حکومتوں نے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, اپنے لوگوں کو پیسہ دیا ہے, کوئی احسان نہیں کر رہی. لیکن ہماری حکومت نے کیا دیا ہے آپ بتاتے ذرا, میری مہربانی کر کے, تاکہ ہمیں معلوم ہو. صرف میں بتاؤں گی تو آپ بولیں گے PTI. مجھے میں تو جانتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا, لوگوں کو سکون نہیں مل سکتا. میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں, بھوک ننگ سے لوگ برباد ہو گئے. یہ امان اللہ خان پراجا صاحب جو ہیں کچھ ایکوزیشنز لگا رہے ہیں, ان کے ایکوزیشنز کو ذرا ایڈریس کر دیں. ساتھ ہی عید پر بھی بات کر لیجئے کہ عید کس طرح متاثر ہوئی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو سب کو عید مبارک ہو. خیر مبارک. آپ نے میرا جو کیا اس میں ایڈوکیٹ ہی بولا, حالانکہ میرا تعلق تحریک انصاف سے, تو آج ہمارا تھیم ہی وہ پولیٹیکل نہیں تھی, لیکن انہوں نے جو بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے کیا دیا, آج تک ہم نے گورنمنٹ کو کیا دیا. ٹیکس تو ہم لوگ دیتے نہیں ہیں اور مانگتے ہیں. 12,000 روپے وہ ملک دے رہا جو اربوں روپے ڈالر کے قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. خیر یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی, ایک ڈفرینٹ ہے. کوئی جان بوجھ کر نہیں کر رہا, چاہے سندھ گورنمنٹ ہو, چائے آپ کی جو ہے میری طرف رکھی ہوئی ہے, آپ کو کیپٹن صاحب آپ کی چائے بھی جو ہے, آپ کی چائے چلے سر, یہ لیجئے آپ, سر یہ آپ لے لیجئے. میرا مائک ہے, میں کھڑی نہیں ہو سکتی, تاروں میں لکھی ہوئی ہوں, یہ لیجئے. اور سر آپ کیپٹن زمان صاحب آپ بھی اپنی چائے لے لیجئے. اور دوسرا آپ بتا رہے تھے جی, اس میں کوئی جان بوجھ کر کچھ نہیں کر سکتا. جس کے ہاتھ میں ہے ورلڈ پاور, امریکہ, 1 لاکھ سے زیادہ افراد وہاں پہ لقم و جل بن چکے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, اس میں پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے. جس کے ہاتھ میں کون چاہے گا اس کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو, مراد علی شاہ ہو, وفاق ہو, کوئی بھی ہو, ہر کوئی اپنا بیس دے رہا ہے. لیکن احساس پروگرام کا میں یہ بولوں گا, اتنی عرصے کے اندر اتنا ٹرانسپیرنٹ جس طرح لوگوں کو پہنچا ہے, باقاعدہ 6 جگہ سے ویریفائی ہو کر پہنچا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ تو نہیں ہے, کہ اس میں باہر ٹریول تو نہیں, کہ اس کے بعد گاڑی تو نہیں, ایسے لوگوں کو پہنچا تو ٹھیک ہے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. رہی بات, اور یہاں پہ حذیفہ میں ایک بات ایڈریس کروں, پھر میں کیپٹن زمان کی طرف بھی جاؤں گی. اور امان اللہ خان صاحب, اب دوبارہ میں آپ سے پولیٹیکل بات نہیں کروں گی, کہ آپ کو پتہ ہے ہماری تھیم ذرا ڈفرینٹ ہے. ان کے ساتھ پولیٹیکل کسی نے بٹھائیے گا نہیں, یہ پولیٹیکل بات کرتے ہیں ویسے بھی, یہ بہت سارے سوالات ہم سیکھ لیں
लेंगे, हम सीख लेंगे आपसे। जी हुज़ैफा, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि मैं बिल्कुल ही एक 100% एक ऑथेंटिक न्यूट्रल चीज़ है यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। कोई एक शख्स थे जिनका CNIC भी आई गेस किसी खैबर एजेंसी या पता नहीं कहाँ का था, मुझे या मर्दान का था, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, लेकिन मैंने रैंडमली उनको बोला था कि आप ये नंबर है इसके ऊपर मैसेज कर लीजिए, और फिर उसके बाद वो आए बताने के लिए मुझे कि आपने थैंक यू सो मच आपने मुझे ये बताया, और वो मेरी अम्मी को आके कह रहे थे और बाकी दुआएं वगैरह दे रहे थे, कहते हैं वो तो मुझे तो पैसे मिल गए। तो वो तो एक रैंडम थॉट थी कि आप हेल्प आउट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि रैंडम हेल्प के अलावा जो हुकूमती हेल्प है वो भी अगर इसमें हो जाती है तो अच्छा हो जाएगा उनकी हेल्प। उस बंदे ने ये बताया कि उन पैसों से जो है घर के किराए में मैंने जो है 10,000 दिए और 2,000 मैंने पता नहीं किसी और चीज़ में दिए। तो यानी ये तो एक पर्सनल कैपेसिटी में केस है जो कि मुझे मालूम है। लोग जो एक सवालात रेस कर रहे थे कि ये सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को दिया जा रहा है और वो भी जो है नाम को दोबारा रीन्यू किया गया है, तो वो सवालात तो नल एंड वॉइड हो जाते हैं। लेकिन फिर अमानुल्लाह खान साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर अमानुल्लाह खान साहब के साथ हम सीखने का मौका मिलेगा, किसी दिन इंशाल्लाह डिबेट करेंगे। आज ईद का मौका है इंशाल्लाह हम सब। मैं आऊंगी ज़फ़ा आपकी जानिब भी, और यहाँ पे गरीब लोगों की नुमाइंदगी की है सर, फिर लॉकडाउन को खत्म करने की बात करें प्लीज सर, गरीबों की नुमाइंदगी गरीब लोगों की बात की है। यहाँ पे कैप्टन ज़मान से भी जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो है ना, डॉक्टर्स भी बहुत एंटी इस ओवरऑल के इस पर्सपेक्टिव के बहुत एंटी है। वो कह रहे हैं कि नहीं, लॉकडाउन शुड रीमेन कांस्टेंट और इसको लिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो इस स्टांस के देयर सो एंटी। पूछते हैं कि क्या वजह है, क्या साइंटिफिकली आप लोग सिर्फ देख रहे हैं कि ये एक लोकली ट्रांसमिट होने वाली एक वबा है, ग्लोबल पैंडेमिक है, आप लोग सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, या क्या है जो आप लोग इतना ज़्यादा लॉकडाउन को फेवर कर रहे हैं? मिस सलबीना, हमारी आदत है कि जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती ना उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब मसला ये है कि ये जो वायरस है ये आम दूरबीन से भी नजर नहीं आता। इसके लिए करोड़ों रुपए की इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप चाहिए जो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, या बहुत कम है। तो सर ये जो पाकिस्तान में स्वैब टेस्ट कर रहे हैं इससे आप सेटिस्फाइड हैं? वो टेस्ट अलग चीज है। मैं ये कह रहा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो वैसे भी दे आर नॉट विजिबल ना, नहीं विजिबल नहीं है ना, मगर इसलिए लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जब तक खुदा न खास्ता उनका अपना करीबी कोई पड़ोसी रिश्तेदार का वो मैं कहता हूँ अजियतनाक डेथ जो होती है ना। अब मेजर साहब याद होगा, मेजर साहब को यानी आर्मी की एम्बुलेंस होगी, उस बेचारे को इतना टाइम नहीं मिला कि वो यानी 2 घंटे का सफर है, अच्छा। वो CMH तक पहुंच सके, डेथ हो गई। एक डॉक्टर डेथ हो गई, ये अभी मेजर असगर साहब नाम से मेरा ख्याल है, ये काफी यंग थे देखे ना। अच्छा, ये डॉक्टर फुरकान आपको पता होगा जो बड़े सीनियर डॉक्टर थे, उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग सोशल पे आई थी। वो बेचारा बोल नहीं सकता था और उसकी एम्बुलेंस में डेथ हो गई, अपनी बेगम की गोद में बेचारे की डेथ हो गई। तो ये देखे ना, हम तो डॉक्टर हैं ना, हम देखते हैं तो हमें पता है कि ये चीज है। अब हमें पता नहीं है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन इसको थोड़ा एग्जैजरेट में भी क्या फिर मैं कहूंगी हम लोग आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएंगे। लेकिन मैं भी एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्या ये एक मैन मेड वायरस है या ये एक नेचुरली आपको लगता है कि पैंडेमिक की सिचुएशन सामने? जनाब देखिए, ये अगेन पॉलिटिकल हो जाएगा कि ये नेचुरल है या मैन मेड है। देखिए ना, इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता, मगर ये वायरस है और इसका कोई इलाज नहीं। पाकिस्तान में तो इतने नंबर्स नहीं है ना। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पहले आपको याद होगा 3 हफ्ते पहले एवरेज 4 डेथ होती थी। अब ठीक है ना, उसको छोड़ें कि कितने हजार हैं। लुकिंग एट द पॉपुलेशन एंड देन केसेस, नहीं 4 डेथ हो रही थी ना 3 हफ्ते पहले, एवरेज 4-5 हो रही थी। अब आप देखें डेली मिनिमम 30 डेथ हो रही हैं। आप प्रिवेलेंस को छोड़े ना, क्योंकि टेस्ट हमारे होते ही नहीं है ना, सारे टेस्ट कहाँ हुए हैं। तो हमारा जो प्रिवेलेंस रेट है कि भाई इतने हजार हैं, ये अंडर एस्टिमेटेड है, क्योंकि टेस्ट हुए ही नहीं है। लोग समझते हैं कि हमें नहीं। 80% सिम्टम फ्री होते हैं, यानी वायरस होता है वो दूसरों को फैला सकते हैं, खुद ऐसे समझते हैं कि मैंने। आपको याद होगा हमारे गवर्नर साहब या को मिनिस्टर साहब भी थे कोई, वो कह रहे थे भाई मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोरोना कैसे हो गया पॉजिटिव, मैं तो ठीक हूँ। आखिर तक ठीक करे, खुदा का शुक्र है वो ही लोग गए। मगर कई पॉलिटिशियन या कई डॉक्टर ऐसे हैं कि बेचारों की डेथ हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ है और इसका मैं ये आप जरा ये गौर से सारे
सारे सुन लें, कोई इलाज नहीं है इसका। जो भी दवाएं मौजूद हैं ये सारी एक्सपेरिमेंटल हैं, कोई इनका 2-3 महीनों में क्या लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस तो आप उसको इंडोर्स करेंगे ना, बीइंग अ डॉक्टर के, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं, वार्म वाटर है और इस तरह की चीजें। वो प्रिवेंशन है, अच्छा, वो अलग चीज है। प्रिवेंशन ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज द क्योर, वो तो लाजमी करनी चाहिए ना। देखिए एक बात में थोड़ा सा मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा, मैं बहुत जरूरी बातें करने वाला हूँ। देखिए इवेंचुअली आखिर में ये वायरस मुंह और नाक और आंख भी है, मगर आंख तो बार बार लेकिन होती है, फील होती है उसमें, आंखों में भी, आंखों से भी जा सकता है। तो जो डॉक्टर आईसीयू में काम करते हैं या कोरोना के साथ, उनको चश्मा भी आपने देखा होगा पहनाते हैं ताकि आई के थ्रू न जाए, मगर वो कम इसलिए कि हम छपकते हैं और अल्लाह ने कुदरती वो इम्यून सिस्टम रखा है। मेन जो जाता है ये नाक और ये मुंह, उसके जरिए जाता है। अब मसला ये है ना कि ये दूसरे वायरस जो है ना, सपोज टीबी है, बैक्टीरिया है, वो सिर्फ खांसने से छींकने से फैलता है। दूसरे फ्लू वायरस खांसने से छींकने से फैलते हैं। ये अजीब डेंजरस वायरस है कि आप बात करो किसी के साथ तो फिर भी फैल जाता है जी, है ना। और अगर यहाँ सपोज मैंने चीज टच की भी हो, वो भी आप सपोज मैंने यहाँ टच किया ना, कोरोना वायरस अल्लाह खैर करे किसी को उसने टच किया जी, तो यानी 6 घंटे के बाद किसी और ने ये जगह टच की ना, तो उसको भी कोरोना वायरस। एक और सवाल मैं आपसे करूंगी, कहीं पे 6 आ रहा है कि 7 आ रहा है फैक्ट्स में, कहीं पे 9 आवर्स भी आ रहा है सर, सरफेस के ऊपर जो रहता है। मैं एक और सवाल आपसे करूंगी लेकिन एक वक्फे के बाद, फिर आप मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई लोकली किसी को ट्रांसमिट हो जाता है तो फिर आखिर किस तरह, ये जो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं कि वील हैव टू कीप आवर हैंड सैनिटाइज और हाथों को ज्यादा धोना है, तो अगर फॉर इंस्टेंस उसने कैरी कर लिया है कोविड-19, वो कैरियर बन चुका है और रिसेंटली किया, और क्या वो जाके फौरन अगर हाथ धोता है तो विल दैट एक्चुअली हेल्प या नहीं, इसके बारे में मैं जानूंगी कैप्टन जमान से कि वो क्या कहते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा वक्फा लेंगे, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम कोविड-19 के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं इस ईद के ऊपर। उसके सर ज़रा प्रिसाइजली इसका जवाब दे दें कि अगर कोई वायरस कैरियर होता है और इंस्टेंट वायरस कैरियर बनता है और किसी सरफेस को छूता है और वो उसको लग जाती है कोविड-19 वायरस, तो उसके बाद क्या अगर वो जाके हाथ धोता है, सैनिटाइज करता है, तो क्या वो क्योर हो जाएगा? देखिए ये कैरियर का वर्ड यूज न करें। अच्छा, या केसेस हैं या केसेस नहीं है। अच्छा, कैरियर का यूज न करें। ये कैरियर जो आप कह रही है ना, वो सिम्टम फ्री कोरोना वायरस के पेशेंट हैं, उनको है वायरस, ठीक है, मगर इम्यूनिटी की वजह से सिम्टम नहीं है, मगर वो ट्रांसमिट कर सकता है। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि कोई टच करने से होता है या नहीं होता। देखिए ना, ये अब लेदर पे 8 घंटे है, मेटल पे 10 घंटे है, उस पे 12 घंटे है, ये तो इतना रट नहीं सकता ना। आप एवरेज 10 घंटे याद रखें, एवरेज 10 घंटे तक वायरस रहेगा। नहीं सर, अगर हाथ धो लिए तो चला जाएगा। अब लिफ्ट है ना, लिफ्ट का हैंडल किसी ने खोला, फिर दूसरे ने उसको टच किया तो फैल सकता है। नहीं सर, तो अगर हमने हाथ लगा लिया और उसके बाद फौरन जाके हाथ धोता है तो क्या क्योर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, देखिए ना, इवेंचुअली ये मुंह और नाक के थ्रू जाता है ना। ठीक है। तो सर अगर मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रही कि हाथ पे अगर लग भी जाता है तो फिर उसके बाद बॉडी में आगे कैसे पेनिट्रेट होगा और हाथ धो के कैसे जाएगा? नहीं, आप देखिए, आप समझिए नहीं जी। देखिए ये वायरस बॉडी में कहीं भी अटैक कर सकता है। देखिए ना, मेरी लेग ने किसी को टच किया, लिफ्ट के डोर के, उसको लेग को लग गया, मगर देखिए मुंह रास्ते के जरिए तो एक ही चीज से जाएगा ना। ये पॉइंट समझने की है। हाथों से जाएगा ना। अब जाहिर है कि कोई मुंह लेग से तो टच नहीं करेगा ना, हाथ से करेगा, तो इवेंचुअली नाक और मुंह में हाथ के रास्ते जाएगा। अच्छा। इसलिए अगर आप हर घंटे में घर में है तो साबुन इस्तेमाल करें। ठीक है, आप प्लीज सैनिटाइजर इस्तेमाल न करें, महंगा है। आम साबुन इस्तेमाल करें जो सस्ता है, वो भी, मगर कम से कम 20 सेकंड। ठीक है, 20 सेकंड। और तो ये फिर ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है हुज़ैफा, थोड़ी सी जो है कॉन्वर्सेशन लाइट कर लेते हैं अपनी। कुछ रैपिड फायर करूंगी आपसे, फिर अमानुल्लाह खान साहब से भी रैपिड फायर क्वेश्चंस ही करूंगी। मुझे ये बताएं, आर यू ब्रांड कॉन्शियस और नो? टी और कॉफी? टी।
कोई ऐसी विश जो आपको लगता है कि आपकी पूरी होनी चाहिए थी और अभी तक पूरी हुई नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। कोई ऐसी विश नहीं है? और कोई ऐसी सुपर पावर आपको लगता है कि सुपर पावर आपके पास होनी चाहिए थी? नहीं, ठीक है जो है काफ़ी। अच्छा, तो अगर आप एडवोकेट ना होते और पॉलिटिक्स में ना होते तो फिर आप क्या करते? मॉडलिंग, ड्रामा, मैं था उसमें। उसके बाद फील्ड फिर में मैंने जब लॉ की तरफ आया तो कुछ कमर्शियल भी किए, ड्रामा भी किया। उसके बाद जब लॉ किया तो फिर लॉ की तरफ ही आ गए। तो ये दोनों अलग अलग इंटरेस्ट नहीं है? थे, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, प्रायोरिटीज़ होती है, एज के साथ, माइंड के साथ। वो टाइम मेरा, उस टाइम पे मुझे वो अच्छा लगा, चार्म था, तो उस टाइम मेरी स्टडीज़ चल रही थी तो साथ में टाइम पास में वो भी कर लिया। जब लॉ के प्रोफेशन में आया तो फिर उसके साथ अब कुछ करने के नहीं है। कभी एडवोकेट होने का फ़ायदा उठाया आपने? बहुत मुश्किल सवाल है ये। हाँ, इज्जत करते हैं काफ़ी, हमारे इदारे वाले काफ़ी ख्याल करते हैं, स्पेशली पुलिस वाले, लेकिन कभी नाजायज़ नहीं किया कि अगर मैं वकील हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं वकील हूँ, इट्स अ वेरी बैड थिंग। हम क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, हमें बिहेव करना चाहिए। अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो आपको खुद सरेंडर करना चाहिए कि नहीं जाओ अपना काम पूरा करें, जो कि अक्सर बहुत कम होता है। मतलब मिस यूज़ ऑफ पावर नहीं किया? नहीं, होना नहीं चाहिए ना। अच्छा, फेवरेट क्यूजीन क्या है आपका? पाकिस्तानी खाने पसंद है, इंटरनेशनली कोई मैक्सिकन, इटालियन कुछ पसंद है आपको? सभी चलता है, मूड के ऊपर डिपेंड करता है, हर चीज़ खा लेते हैं। अच्छा, अमानुल्लाह खान पराचा साहब, आपको कौन सा क्यूजीन पसंद है? कौन सा खाना, पाकिस्तानी, इटालियन, चाइनीज़? मुझे तो पाकिस्तानी खाने और अरबी खाने पसंद है दोनों। अच्छा, और कोई स्पेसिफिक ब्रांड आपको पसंद है? जो पाकिस्तानी ब्रांड ज़्यादातर। अच्छा, कोई मतलब कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है? क्या परफ्यूम, आपको परफ्यूम्स पसंद है या नहीं पसंद? बिल्कुल पसंद है, खुशबू तो पसंद है हर किसी को। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों के जो वो पता नहीं कैसे रिएक्टिव होते हैं परफ्यूम लगाते हैं। खुशबुआत पसंद। अच्छा, हर किस्म की, इंग्लिश हो, अतर हो, अच्छे खुशबू, अच्छी चीज़ें हों। अच्छा, मेरी कमजोरी है। अच्छा, ठीक है। और कोई विश आपकी जो आपको लगता है कि अभी तक पूरी नहीं हुई? जी, अभी तक ये पूरी नहीं हुई, फिर मैं कहूँगा प्रोडिसाइज ना हो जाए, लेकिन जो विश पूरी नहीं हुई कि अल्लाह पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान दे दे जो इस गरीब कौम को और सियासत को पैसे से एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, लोग करोड़ों लगा के अरबों कमाने के चक्कर में आते हैं। ये चीज़ एलिमिनेट करने के लिए ये एक दिल में तमन्ना है कि गरीब आदमी भी इंतखाब लड़ सके और इस मुल्क पे जमहूरियत से इस्तेफादा कर सके। ये बस एक ख्वाहिश है, अल्लाह अपनी ज़िंदगी में पूरी करा दे, एक तमन्ना है जो इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर सर वो ये एक बात ऐड ये करूँगा, इनकी तो माशाल्लाह हमारे बड़े हैं, एक उम्र गुजर गई, ये इंशाल्लाह हमारा इनसे वादा है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो ये ना कर सके वो हम इस गवर्नमेंट में, नेक्स्ट गवर्नमेंट में ऐसे हुक्मरानों को इलेक्ट करवाएं जो गरीबों का भी ख्याल रख चुके हैं, जो कि आज तक नहीं हो सका इनके टाइम में। हमें तो अभी चीज़ जो मिली है वो तो एंड में मिली है। ये एक अच्छे के एक्शन में बात की है कि आप लोग जो फेल हो गए, नहीं पीटीआई की बात नहीं है, मैं आपकी बात करूँ, इमरान खान साहब मेरे भाइयों की तरह, हमने 10 साल साथ गुजारे। आरिफ अलवी साहब मेरे नीचे एमपी लड़ते थे, हम साथ करते थे, हमने साथ पार्टी बनाई। हमारा बुनियाद यही थी कि हम गरीब को ऊपर लेकर आएंगे। सही, हमारी बुनियाद ये थी कि हम किसी के करप्ट आदमी को अपने साथ मिलाएंगे, ये हमारी बुनियाद। लेकिन सर वो तो आप कह रहे हैं ना, वो मोनार्कियल सिस्टम जो बनाया वही कह रहे हैं। यहाँ बदकिस्मती ये है कि पैसे ने सियासत को पैसे से एलिमिनेट कर दिया गया। अच्छा, जिसके पास पैसा है वही आ सकता है, पैसा नहीं है तो उसके लिए मुतवस्सित और गरीब आदमी को अब एक इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा इस एलीट क्लास के खिलाफ। ये 1% ठीक है। जिस दिन ये हो गया इंशाल्लाह इस पाकिस्तान में अवाम हुकूमत करेगी, जिसको आप जमहूरियत कहेंगे। आपने एक सवाल, हमें बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ पे पीटीआई कर जाएगी, लेकिन नहीं कर सकती। टाइम लगेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, टाइम लगेगा। आपने वो सवाल पूछे ब्रांड, देखें पर्सनैलिटी होनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर की देखिए कैसी पर्सनैलिटी है ना, वो ज्यादा जैसे भी खड़ा हो, लेकिन ये लेटर नोट में मैंने बोला है, ये लेटर नोट में मैंने बोला है, को चले एंडोर्स कर दे, मतलब कुछ भी पहने वो। देखें ना, खान साहब से अच्छा बंदा कोई बेनजीर पर्सनैलिटी। बात सुने, वो खुद एक बहुत क्लीन साफ सुथरा बंदा, साथ जो टीम है ना वो परफॉर्म नहीं करने सर, हम ब्रांड की बात कर रहे हैं। बार जो है लोग चेंज करते हैं, बार वो। ठीक है सर, कोई आप ऐसी कोई बात बताएं जिसको सुन के ना आपको लगता है आपका बीपी शूट कर जाता है। तो वो यही शूट करता है कि लोग गरीबों की बात करते हैं, ये जो गरीबों की बात करता है, लेकिन गरीबों के लिए काम नहीं है, गरीबों के लिए इमदाद की बात होती है। आपको किस बात से ज्यादा गुस्सा आता है?
पॉलिटिक्स नहीं, जनरली अगर कोई एक ऐसी चीज हो आपको लगता है कि दैट कम्प्लीटली टर्न्स यू ऑफ और आपको गुस्सा आता है, आपका बीपी हाई हो जाता मुझे है? इस बात में गुस्सा, 70 साल से सोई हुई डूबी हुई, बिल्कुल ना शऊर ना कुछ, वो कहती है 2 साल के अंदर कुछ करके दिखा दो, तो वो मतलब एक लॉजिक इस्तेमाल करे और कितना टाइम ये तो मिलेगा? 2 साल में तो अभी टाइम दिया 2 साल में कर नहीं करता। 100 दिन में कर देंगे। अरे ठीक है तो ना, 100 दिन के 200 हो गए, 300 हो गए, अब तो आप शुक्र है इतना शऊर दे दिया दिन हो गए। हमने, शुक्र है इतना शऊर दे दिया कि हमारे दिन भी गिने भाई जा रहे हैं। आपने 100 दिन कहा था, ठीक है। भाई क्यों नहीं आपने होमवर्क कंप्लीट किया था? यू न्यू इट, ठीक आपको है, गवर्नमेंट मिल सही है, ठीक है सर। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी चीज जो प्रैक्टिकली अगर आपके सामने हो तो आपको बहुत बुरा लगता है, बुरा महसूस होता है, अगर गुस्सा नहीं आता तो आपको बुरा महसूस होता है, कोई ऐसी नॉर्मल प्रैक्टिस जो लोग करते हैं आपको लगता है? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, 2 डिफरेंट ग्रुप को आप बड़ी खूब प्यारे तरीके से हैंडल कर रही है। सर ये तो पॉलिटिकल शो नहीं है, पॉलिटिकल शो में से ज्यादा उसमें तो करना बहुत पड़ता है। ज्यादा होता है। अच्छा जी। ये तो अब देखिए, माशाल्लाह ऐसा काम करती मुझे है कि मुझे बड़ा जी जी ये देखिए सर, हम देखिए आगे- आपका बड़ा ये इंटरेस्टिंग मैं आपको क्वेश्चन है। बगैर चढ़ाए बता रहा हूँ, हाँ, सच बता रहा हूँ। जी जी इनकी आप रेटिंग देख रहे हैं इंडिया वगैरह में, जो इंडिया के मुखालिफ हैं ये, जी और बड़ा जबरदस्त इंडियन एंकर्स इनको बिल्कुल लिटरली नंगी गालियां देता है। आई एम टेलिंग यू सर लाइव शो है सर, ये सेंसर जनरल बात कर रिपीट में इसको एडिट कर लीजिएगा। अच्छा देखिए आपका सवाल है कि कौन से लोग थे बिग मुझे- एप्रिसिएशन टू यू। एक दुश्मन मुल्क है, वो अगर आपको गाली दे रहा है तो मीन सर, मैं उनकी आवाम। आपके साथियों में हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ इसमें। जी। मुझे अगर इंडियन गाली देगा जी। तो मेरे लिए फखर है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए फखर है। तो जला तो सी मेरी बात जी, जी, सर। तो हम आपको खुश वो जी, अप्रिशिएट करते हैं कि जी, ये जी, आपको सर, मिल रही है, बिल्कुल। हमें मिलना चाहिए। जी सर। सही है। देखिए जो सबसे मुझे उलझन होती है, जो खराब आदमी लगते हैं ना, वो मुनाफिक। मुनाफिक। हाँ, सर झूठ, मुझे वही झूठ इक्विवेलेंट हो गया ना, मुझे झूठ से बहुत गुस्सा मुनाफिक आता है। आदमी ज्यादा देर छुप नहीं सकता, उसके अंदर एक चीज होती है, बाहर दूसरी चीज होती जी। है ना, वक्ती तौर पे वो कामयाब होता जी। है। अब सारे नहीं, आई एम सॉरी, यू अपोलोजाइज, आज ईद है, जमहूरियत है, जमहूरियत है। खुल के बोलो, नहीं डॉक्टर साहब मैं आपके साथ हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, सच बात निकल गई आप। इन दिनों हम आपके साथ आपकी हैं। सच बात है ना, आप सारे नहीं, मेजॉरिटी जी सियासतदान जी मुनाफिक हैं, मेजॉरिटी। Majority। आई अपोलोजाइज, ठीक जी। है ना, सारे तो जाहिर है कि अच्छे लोग भी हैं, मगर मेजॉरिटी मुनाफिक हैं, अंदर से एक, बाहर से दूसरे। तो मुनाफिक आदमी छुप नहीं सकता। ठीक है, मैं एक सर, बात और बताऊं, वक्त- अच्छा, एक मैं वक्त- आपके सर, साथ- वक्त खत्म हो गया, एक मुझे सेकंड। wind up करना मैं है, ये सर। बात क्लियर Wind up करना करना है, चाहता हूँ, जी। ये 1% एलीट क्लास जो सियासतदानों के ऊपर बैठी है, जी। ये मुनाफिक है। ठीक है, अगर सर, आपने wind up कर देते ग्रास रूट से लोग लिए होते तो सर, ये मुनाफिक ठीक नहीं है होते। सर, आपको स्ट्रेंथ क्या लगती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? किसकी पर्सनली आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ देखिए, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। ठीक है। हाँ, और अल्लाह मुझे तौफीक दे, बीइंग ए डॉक्टर, मैं कोशिश करता हूँ मेरे हाथ से किसी को फेस पहुंचे, दुख न पहुंचे। ठीक है। देखिए ना, आखिरी देखिए सवाल, आखिरी एक मिनट सवाल, जरा, एक हकूकुल्लाह है, एक हकूकुल इबाद इबाद, जी। है। हमारे सारे जो 90% कौम है ना, हुकूक, वो समझते हैं कि ये आयत पढ़ो तो हमारे 50,000 गुनाह माफ हो जाएंगे। हुकूकुल ये इबाद गलत का है। भी, जी। ये हकूकुल्लाह माफ हो सकते हैं, हकूकुल इबाद माफ नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकता। सर, आखिरी आपने सवाल ये किसी ऐड का कर पर्स दे। छीनते हुए किसी को गोली मार दी, आप आयत पढ़े तो माफ हो सर, जाएगा आखिरी वो। सवाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए 1 वर्ड। इमरान खान, जी देखिए अब इमरान खान सच को बात करना यार। नहीं, मैं सच्ची बात करूंगा कि इमरान खान को अभी 2 साल हुए हैं ना, जी इनको देखिए टाइम दें, इनको टाइम दें। देखिए ना, उसकी नीयत पे मुझे शुबा नहीं है। ठीक है। और किसी ने कहा कि टीम का है, देखिए ना, टीम भी तो जरूरी है ना, खुद अच्छा बंदा है, टीम अच्छी नहीं। मगर टीम ठीक की है। सिलेक्शन भी तो कैप्टन ठीक है, करेगा ना। बहुत बहुत कैप्टन शुक्रिया बैठा। प्रोफेसर अब कैप्टन जानबूझ के टीम गलत जमान करेगा तो शेख कैसे साहब। काम होगा? बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन मोहम्मद जमान शेख साहब, आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अमानुल्लाह खान पराचा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट हुज़ैफा खान, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त कम था और बहुत सारे सवालात थे जो कि रह गए। इंशाल्लाह फिर कभी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।